So chapter number 9, divisional transfer pricing. Question number 1 is G is the transferring division and R the receiving division in a company. R has demand for 20% of G's production capacity, which has to be the first met as per the company's policy. State with reason which division G or R enjoys more advantage in each of the following independent situations, assuming no inventory buildup. G transfer to R at a transfer price equal to full cost, no markup, market price, marginal cost, market price. G's production level is 60%, 80%, 100%. External demand is 40, 60, 80, 90. So division having more advantage and reason to be given. Answer number 1. Division G is having more advantage. डिवीजन जी, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जी या फिर आर कौन ज़्यादा इन्जॉय करता है. फर्स्ट केस है फुल कॉस्ट नो मार्कअप वाला, जिसमें 60% प्रोडक्शन जी करता है और एक्सटर्नल डिमांड 40% है. तो जी इज़ हैविंग more advantage. G is utilizing only 40% of production. G is utilizing only 40% of production capacity by selling to external market, which implies that G might have not been able to recover its full fixed cost by transferring 20% of its production capacity to division R at full cost. G will be able to recover fixed cost components. G is utilizing only 40% of production capacity by selling to external market. External market को सिर्फ 40% ही sell कर रहा है, which implies that G might have not been able to recover its full fixed cost. G की पूरी fixed cost नहीं निकल रही होगी. By transferring 20% of its production capacity to division R, अगर 20% उसको transfer कर दे, R has a demand for 20% of G's production capacity, which has to be first met as per the company's policy. तो उसको कर देनी चाहिए R को full cost में. G will be able to recover fixed cost. सेकेंड केस है मार्केट प्राइस का. मार्केट प्राइस में जीज प्रोडक्शन लेवल इज़ 80% और एक्सटर्नल डिमांड है 60% की. द आंसर इज जी विल नॉट बी लूजिंग एनी एक्सटर्नल मार्केट डिमांड as it is within its production capacity, that is by transferring 20% of production capacity to R at market price. G will earn extra contribution towards the fixed cost and profit, क्योंकि 80 प्रोडक्शन है और 60 से वो एक्सटर्नल ट्रांसफर कर रहा है, तो 20 वैसी बची है उसकी. फर्स्ट वाले केस में भी सेम था. नेक्स्ट इज 100% जी की प्रोडक्शन लेवल कैपेसिटी है बट एक्सटर्नल डिमांड 80% की है. हेयर जी इज ऑपरेटिंग एट 100% कैपेसिटी लेवल एंड एक्सटर्नल मार्केट डिमांड इज 80% ओनली. दैट इज जी इज नॉट लूजिंग एनी एक्सटर्नल मार्केट डिमांड, बट by transferring 20% of production capacity to R at marginal cost, that is at variable cost, marginal cost, variable cost, G may not be able to recover fixed cost part of total cost. क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रिकवर कर पाएगा जी टोटल कॉस्ट में से. ऑन द अदर हैंड आर विल बी एबल टू गेट दीज यूनिट्स एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली. तो ये आर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. भाई ये क्वेश्चन आ सकता है पक्के से. जी जी में क्या है, मार्केट प्राइस फोर्थ वाले में 100% कैपेसिटी और 90% एक्सटर्नल डिमांड है. तो इसमें जी को अपना 10% लूज करना पड़ेगा एक्सटर्नल मार्केट डिमांड का, बट इट वुड बी एबल टू अर्न द सेम रेवेन्यू by transferring the goods to division R at market price. Moreover, G will be able to utilize 100% of its production capacity. तो इसमें G एडवांटेज में है. क्वेश्चन नंबर 2. B Limited makes 3 products XYZ in division XYZ respectively. The following information is given. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है पर रुपी पर यूनिट, एक्सक्लूडिंग मटेरियल X फॉर डिविजन Y एंड Z 8, 22, 40. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 4, 6, 8 का. वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस टू आउटसाइड कस्टमर्स 25, 65, 90. एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट्स 6000, 3000, 3000. Maximum external market demand number of units is 5,550, 5,500, 5,000. Additional fixed cost that can be incurred to install additional capacity is 45, 9,000, 23,100. Maximum additional units that can be produced by additional capacity is 6,000, 2,000, 2250. Y and Z need material X as their input. Y और Z को X चाहिए. Material X is available in the market at 23 rupees और ये दे रहा है आपको 25 रुपये पे. Defectives can be returned to supplier at their cost. Direct division X supplies the material free from defects and hence is able to sell 25 rupees per unit. Each unit of Y and Z require 1 unit of X as input with slight modification. If Y purchases from outside rupees 23 per unit, it has to incur 3 rupees per unit as modification. तो 26 रुपये का पड़ेगा and inspection cost.
If Y purchases from division X, it has to incur in addition to transfer price rupees 2 per unit to modify. 25 का पड़ रहा, 27 का पड़ेगा यहाँ तो. If Z gets the material from division X, it can use it after incurring a modification cost of rupees 1 per unit. If Z buys material X from outside, it has to either inspect and modify it as its own shop floor at rupees 5. अगर Z बाहर से अगर Z material लेता है डिवीजन X से, तो it can use it after incurring a modification cost of rupees 1 per unit. तो इसको 27 का पड़ेगा और 26 का पड़ेगा. If Z buys material X from outside, it has to either inspect and modify it on own shop floor 5 रुपये per unit. Our idle labor are using division X at 3 rupees per unit. Division X will lend its idle labor to as per Z's requirement, even if Z purchases the material from outside. The transfer price are at the discretion of the divisional managers and will remain confidential. Assume no restriction on quantities of inter-division transfer or purchases. You are required to discuss with relevant figures that best strategy for each division and for company as a whole. तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाएंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो 3 डिवीजन है, डिवीजन एक्स वाई जेड. ठीक है, डिवीजन एक्स जो है वो आउटसाइड सेल भी कर सकता है, या तो वाई को भी दे सकता है, जेड को भी दे सकता है. और जेड डिवीजन वाई जो है और जो जेड है, या तो वो परचेज कर सकता है आउटसाइड से या फिर एक्स से. डिवीजन वाई का भी यही है, आउटसाइड से परचेज कर ले या फिर एक्स से परचेज कर ले. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, तो अगर जब ये एक्स बाहर बेचता है तो 25 पे ही बेचता है, वाई को भी उतने पे ही देगा. और अगर ये बाहर से परचेज करते हैं तो इनको पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल रुपी पर यूनिट. ट्रांसफ़र प्राइस दिया हुआ है 24 का और 25 का. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग मटेरियल एक्स. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ एक्स दिया है, ट्रांसफर प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन 11, 10, 11, 9, 9, 14. Division Y will not pay division X anything more than 24 rupees, because at rupees 24 it will incur additional cost of rupees 2 per unit to modify it. 23 plus 3 is 26, that is outside cost. तो भाई decision of whether to expand or not, statement showing internal transfer decisions. पहले ये निकालते हैं, statement showing internal transfer decisions in units. X, Y, Z की बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है. एग्जिस्टिंग कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट्स 6000, 3000 और 3000. ठीक है, और मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन बी एडेड, मैक्सिमम एक्सटर्नल मार्केट डिमांड, मैक्सिमम एडिशनल यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिशनल कैपेसिटी. मैक्सिमम एडिशनल कैपेसिटी दैट कैन बी एडेड, इसमें 6000, इसमें 2000 और इसमें 2250. टोटल मैक्सिमम दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमम यूनिट्स, टोटल मैक्सिमम प्रोडक्शन दैट कैन बी डन. इसकी 12,000, इसकी 5,000 और इसकी 5,250 यूनिट्स. अब इसमें से मैक्सिमम एक्सटर्नल मार्केट डिमांड, मैक्सिमम एक्सटर्नल डिमांड ये दिया हुआ है 5,000 बाहर बेच सकता है, ये 5,500 बार बेच सकता है, ये 5,000 बार बेच सकता है. तो बचा कितना, 7,500 और 250. एक सेकंड,
इसमें क्यों नहीं आया भाई वाई में? बैलेंस ई माइनस डी 500। अच्छा सॉरी, इसके पास तो ऊपर ही कम है मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 5000 है, तो मैक्सिमम भी 5000 ही बेचेगा ना, 500 थोड़ी बेचेगा, बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, ज़ीरो। अब इंटरनल ट्रांसफ़र टू अदर डिवीजन, इंटरनल ट्रांसफ़र टू अदर डिवीजन, तो डिवीजन एक्स विल सप्लाई इट्स प्रोडक्शन टू डिवीजन जेड फर्स्ट आफ्टर मीटिंग इट्स एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट एज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट जेड इज़ हाई। कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा पहले एक्स वाई जेड का तीनों का, इन लोगों ने निकाल लिया होगा यहाँ पे। 14 रुपीज़ आ रहा है इसका क्योंकि जेड का, तो वो सबसे ज़्यादा है, तो पहले जेड को देंगे, इसके लिए भी अब पहला वाला पहले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको 5000 देंगे और इसको 2000 देंगे, ऐसा क्यों? निकाल लिया था क्या ये भी कि इसकी डिमांड 5000 है और इसकी डिमांड 2000 है। इंटरनल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर डिविजन्स, दे तो कुछ पाएंगे नहीं वाई और जेड, और एक्स को लेना कुछ नहीं है, 2000 ये लेगा, 5000 ये लेगा। अब ऊपर लिखा है डिवीजन वाई विल नॉट पे डिवीजन एक्स एनीथिंग मोर देन 24 बिकॉज एट 24 it will incur additional cost of rupees 2 per unit to modify 23 plus 3 is equal to 26, that is the outside cost। 26 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा y x को। To purchase material x from outside is costly for division y, as after modification at own shop floor cost of the same comes to 23 plus 5 28 rupees। If division x goes to utilize its full capacity in the case, labor would not be available for modification to department z। Accordingly, division z may purchase material x at rupees 25 from division x, that is market price to outsiders। यहाँ वापस हो जाओ। अब जब x आउटसाइड सेल करेगा, x और y और z को बेच सकता है, y आउटसाइड से परचेज कर सकता है और इससे ले सकता है, z भी आउटसाइड से और x से ले सकता है। तो सेलिंग प्राइस कितना रखेगा y जब बाहर बेचेगा? 25 पे बेचेगा, ठीक है। और y और z को बेचेगा नहीं, इंटरनल ट्रांसफ़र करेगा, तो ट्रांसफ़र प्राइस रहेगी division y will not pay division x anything more than 24 rupees because 24 it will incur an additional cost of 2 rupees per unit to modify, और 23 plus 3 26 is the outside cost। 26 रुपये में उसको बाहर मिल रहा है, किसको? y को। तो y जो है उसको 2 रुपये उसमें भी लगेंगे, तो वो x को सिर्फ 24 रुपये देगा, और z जो है z को 5 रुपये लग रहे हैं एक्स्ट्रा खर्चा करने के। बट अगर वो बाहर से 28 में ख़रीद रहा है, और अगर यहाँ पे उसको ये वाली कॉस्ट नहीं लगेगी z को, कौन सी वाली कॉस्ट? ये लिखा था ना इसमें 3 रुपये पर। इफ़ वाई परचेजेस फ्रॉम आउटसाइड 23 and it has to incur 3 rupees per unit, and if y purchases from division it has to incur transfer unit 2 rupees per unit, and if z gets the material from x, modification cost of 1 rupees per unit, x से लिया तो 1 rupees per unit पड़ेगा, बाहर से खरीदेगा तो 25 रुपये पड़ेगा, और आइडल आर्ट्स में 3 रुपये का पड़े, 3 रुपये इसके यूज़ हो जाएंगे, तो बेसिकली इसको 2 रुपये का पड़ेगा एक्स्ट्रा अगर बाहर से लेता है तो। बाहर की कॉस्ट 23 रुपये, 23 और 2 25, तो ये जो z है ये x को 25 से ज़्यादा नहीं देगा, तो इसकी 25 हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है x में 8 रुपये, किसी को भी बेचे 8 रुपये तो लगेंगे उसके मटेरियल के, और उसको 8 नहीं लगते, x को तो दूसरा मटेरियल लगेगा ना, y और z को x लगता है, बट x को जो खुद बनाने में x को खुद x बनाने में कुछ और मटेरियल लगेगा, उसका 8 रुपये कॉस्ट है। फिर डायरेक्ट लेबर उसको 4 रुपये का लगेगा, किसी को भी बेचे। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो उसको 2 रुपये का ही लगेगा, किसी को भी बेचे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आएगा 25 रुपये माइनस 8 माइनस
25 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2, 11 रुपये आउटसाइड अगर सेल करता है तो 24 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2, 10 रुपये इसको और 10 रुपये इससे, ठीक है। सॉरी, इससे 11 रुपये आया क्योंकि इसका 25 रुपये है ना ट्रांसफ़र प्राइस। इन तीनों से 11 इतना का कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब डिवीज़न वाई जब प्रोक्योर करेगा, डिवीज़न वाई को बाहर से ख़रीदना पड़ेगा अगर, तो उसे पड़ रहा है 23 रुपये का पर यूनिट और 3 रुपये उसको मॉडिफिकेशन में लगेंगे, तो 26 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। पच्चीस, 8 और 4 और 2, वाई जब सेल करेगा, वाई कितने पे सेल करेगा अपना यूनिट, वाई सेल करेगा 65 पे, बाहर बेचे या किसी को भी बेचे 65 पे बेचेगा। और जो डिवीज़न एक्स जेड है, डिवीज़न जेड वाई से नहीं खरीद, डिवीज़न जेड बाहर से नहीं खरीद रहा है, नहीं डिवीज़न जेड सिर्फ एक्स से ही खरीद रहा है, तो वो जब बाहर जाके बेचेगा तो वो 90 रुपये पे बेचेगा डिवीज़न जेड, ठीक है। तो ट्रांसफ़र प्राइस तो कुछ आएगा नहीं इसमें। अब डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, वाई को लगेगा 22 रुपये का, बाहर बेचे या बाहर से ले या एक से ले, वो तो सेम ही रहेगा ना। इसको 40 रुपये का लगेगा। डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर इसको 6 रुपये का लगेगा, इसको 8 रुपये का लगेगा जेड को। और वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपये का लगेगा, इसको भी 2 रुपये का लगेगा। तो अब क्या हुआ, ₹65 का बेचेंगे, 22 रुपये का मटेरियल लगेगा, 6 रुपये का लेबर लगेगा, 2 रुपये का ये लगेगा, 35 रुपये का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये इनके नॉर्मल खर्चे हो गए। अब अगर वाई बाहर से ख़रीदता है, ठीक है, वाई अगर आउटसाइड से ख़रीदता है तो 23 रुपये का पड़ेगा उसको मटेरियल एक्स का कॉस्ट, ठीक है। और जेड तो बाहर से ख़रीद ही नहीं रहा है, एक्स से ख़रीदेगा तो ट्रांसफ़र प्राइस पे लेगा, ठीक है। और अगर ट्रांसफ़र प्राइस पे एक्स से लेगा तो एक्स देगा उसको 24 रुपये पे और इसको देगा 25 रुपये पे, ठीक है। उसके बाद इनको लगेगी मॉडिफिकेशन कॉस्ट। अगर बाहर से परचेज़ करेगा तो 3 रुपये मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगी, एक्स से परचेज़ करेगा तो 2 रुपये मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगी, और अगर ये इससे परचेज़ करेगा एक्स से जेड तो इसको 1 रुपये पर यूनिट कॉस्ट मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकलेगा इन सब का कि 65 रुपये में से 22 रुपये मटेरियल पे, 6 रुपये लेबर पे, 2 रुपये ओवरहेड पे, 23 रुपये एक्स लेने में और 3 रुपये मॉडिफिकेशन के, तो इसका कंट्रीब्यूशन आया 9 रुपये, ठीक। और अगर एक्स से ख़रीदता तो 65 में बेचता, 22 का मटेरियल, 6 का लेबर, 2 का ओवरहेड, 24 का ये और 2 का ये, तो भी 9 ही आता। बाहर से ले ले या एक्स से ले ले कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये 90 पे बेचेगा, 40 का इसका मटेरियल आएगा, 8 का ये आएगा, 2 का ये आएगा, 25 का एक्स आएगा और 1 रुपये मॉडिफिकेशन पे लगेगा, तो 14 रुपये का इसका कंट्रीब्यूशन निकलेगा जेड का, ठीक है। तो डिवीजन वाई विल नॉट पे डिवीजन एक्स एनीथिंग मोर देन 24 रुपये, बिकॉज एट 24 इट विल इनकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹2 पर यूनिट टू मॉडिफाई इट, दैट इज़ 23 + 3 पे आउटसाइड ही सही मिल जाएगा उसको, इसलिए वो 24 से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि 24 + 2 26 हो रहा है, 26 पे तो बाहर ही मिल रहा है। टू परचेज मटेरियल एक्स फ्रॉम आउटसाइड इट is costly. To purchase material X from outside is costly for division Z, as after modification at own shop floor, cost of the same comes to 28 रुपीज़। Z तो बाहर से लेगा ही नहीं क्योंकि उसको बाहर बहुत महंगा मिलेगा, 23 + 5 रुपये पे 28 रुपये पहुँच जाएगा यहाँ पे, बल्कि उसको फिर भी 26 रुपये पड़ रहा है। If division X goes to utilize in full capacity, in that case labor would not be available for modification to
डिपार्टमेंट Z. Accordingly, division Z may purchase material X at rupees 25 from division X, that is at market price to outsiders. 25 रुपये पे ले लेगा वो. फिर नेक्स्ट कैपेसिटी ये है, इसमें इंटरनल ट्रांसफर्स टू अदर डिविजन. पहले Z की कैपेसिटी मीट करेगा क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन हाई है, और 7,000 में से एक्सटर्नल डिमांड 5,000 की है Z की, तो 5,000 यूनिट उसको दे देगा पूरा. बचे हुए 2,000 Y को दे देंगे. स्टेटमेंट शोइंग डिसीजन वेदर टू एक्सपैंड और नॉट. अब ये वाला डिसीजन कैसे लेंगे कि वेदर टू एक्सपैंड और नॉट. दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन, अभी एक्स वाई जेड को देखते हैं. तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एक्सपेंशन शैल बी इंस्टॉल्ड एडिशनल कैपेसिटी. एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी, इसमें लगेगी 45,000 की, इसमें लगेगी 9,000 की, इसमें लगेगी 23,100 की. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी अर्नड बाय एक्सपेंशन, contribution that can be earned by expansion. एडिशनल कैपेसिटी 6,000, 2,000 और 250 की निकलेगी. तो कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी अर्नड बाय एक्सपेंशन 6,000 यूनिट्स टोटल आप एक्स्ट्रा बना सकते हो. तो इन्होंने 4,000 और 2,000 अलग अलग किया क्योंकि जो X है वो बाहर सिर्फ एज मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्रोडक्ट Z इज 5,000 units, for which division Z first complete existing capacity of 3,000 units, balance 2,000 units from expansion. क्या बोला है इसमें, contribution that can be earned by expansion कहाँ से लेगा X, 4,000 यूनिट पे 11 रुपये मिलेगा उसको. 11 रुपये कहाँ से मिल सकता है, आउटसाइड से या फिर Z को बेच के. 10 रुपये मिलेगा उसको X Y को बेच के. तो Y को तो सिर्फ इंटरनल ट्रांसफ़र में 2,000 यूनिट ही दे सकता है वो. तो 2,000 यूनिट पे 11 रुपये मिलेगा, बाकी 4,000 यूनिट पे 10 रुपये मिलेगा. उल्टा बोल दिया यार तुमने. बट यहाँ पे वाई का तो इतना ही आ रहा है यार, ये क्या किया है फिर इन लोगों ने, कैसे निकाला ये. कंट्रीब्यूशन दैट कैन बी अर्नड इज 64,000, नेट बेनिफिट फ्रॉम एक्सपेंशन इज 19,000. तीनों में एक्सपेंशन 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 क्योंकि बेनिफिट हो रहा है एक्सपेंशन से. 4,000 यूनिट्स इंटू 11 प्लस 2,000 यूनिट्स इंटू 10, 2,000 यूनिट्स 10 रुपये पे जाएंगी, 10 के उस पे जाएंगी वाई में, क्योंकि 2,000 यूनिट्स. एक सेकंड, वाई का अबे गधे, वाई का कंट्रीब्यूशन है 10 रुपये. वाई का कंट्रीब्यूशन है 10 रुपये, तो 2,000 यूनिट्स ही जाएंगी ना वाई को, तो 2,000 इंटू 10 ही होगा ना. और 4,000 यूनिट जो है आउटसाइड या फिर जेड को बेच सकते हैं. तो 4,000 इंटू 11 होगा, 4,000 इंटू 11 और 2,000 इंटू 10, 2,000 इंटू 10 ये हो गया 20,000. टोटल हो गया 64,000 का. contribution that can be earned by expansion is 2,000 units into 9 rupees, क्योंकि ये एक्सपैंड करेगा 2,000 यूनिट से, और इसकी एक्स्ट्रा जो है इंटरनल ट्रांसफ़र वो भी 2,000 ही है. मतलब ये तो बाहर बेचेगा ना अगर एक्सपैंड करेगा तो. और इसको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 9 रुपये. आउटसाइड ही सेल करना है इसको, तो 18,000 का इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. और जो जेड है, जेड भी बाहर ही बेचेगा, और जेड की मैक्सिमम एडिशनल कैपेसिटी है 2250 होगी, इसका कंट्रीब्यूशन है 14 रुपये, तो वो 14 से ही मल्टीप्लाई होगा. अच्छा, और इसमें 2,000 ही. एज मैक्सिमम डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जेड इज़ 5,000, मैक्सिमम डिमांड 5,000 की है, विच डिवीजन जेड फर्स्ट कंप्लीट विद एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 3,000, और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उनकी 3,000 की है. मैक्सिमम एक्सटर्नल मार्केट डिमांड नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000, और अभी कैपेसिटी 3,000 की है, कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो
5,250 तक ले जा सकते हैं, बट डिमांड ही 5,000 की है, तो सिर्फ 2,000 यूनिट ही बढ़ाएंगे, और 2,000 यूनिट बढ़ाएंगे तो 14 रुपये का वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, उस हिसाब से 28,000 रुपये कमा लेंगे ये, ठीक है। तो 45 लगा के 64, 19,000 का गेन है, 9 लगा के 18 कमा रहे हैं तो 9,000 का गेन है, 23,100 लगा के 28,000 कमा रहे हैं तो 4,900 का गेन है। तो तीनों में डिसीजन यही होगा कि एक्सपैंड करो आप, ठीक है। फिर नीचे ये दिया हुआ है कि स्टेटमेंट शोइंग नेट रेवेन्यू एडिशन, नेट रेवेन्यू एडिशन, नेट रेवेन्यू एडिशन में एक्स वाई जेड और टोटल। नेट रेवेन्यू एडिशन क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन जो था, ठीक है, इनकी डिमांड है 5,000, 5,500 और 5,000, तो 5,000 पे 11, एक्स का कंट्रीब्यूशन, एक्स का कंट्रीब्यूशन 11 रुपये, हाँ मतलब आउटसाइड सेल करता है या फिर वाई को जेड को देता है तो 11 रुपये मिलेंगे। अच्छा ये एक्सटर्नल सेल्स पे निकाला है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन एक्सटर्नल सेल्स, वाई अगर एक्सटर्नल सेल्स करता है तो 5,000 इंटू 11 55,000 कमाएगा, और एक्स अगर सेल करता है, और वाई अगर एक्सटर्नल सेल करता है तो 9 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन है और डिमांड है 5,500 यूनिट्स की, तो 5,500 इंटू 9 49,500, और जेड अगर सेल करता है तो जेड की 5,000 यूनिट की अगर पूरी बाहर बेचता है तो 14 रुपये मिलेंगे उसको, 5,000 इंटू 14 70,000 प्लस 49,500 प्लस 55,000, अगर ये सबके सब बाहर बेचते हैं तो टोटल 1,74,500 कमा लेंगे। अबे वाई में क्या हुआ, अच्छा वाई में तो क्या है, एक्चुअली डिमांड 5,500 की है बट कैपेसिटी 5,000 की है तो 9 पे तो 5,000 ही मिलेगा, तो 45,000 ही बेच पाएगा वो, कमा पाएगा। 9 इंटू 45,000, सो 55,000 प्लस 45,000 प्लस 70,000, टोटल हो गया 1,70,000। और अगर कंट्रीब्यूशन निकलेगा ट्रांसफ़र, इंटरनल ट्रांसफ़र से, तो इसमें चेंज हो जाएगा एक्स के केस में, सिर्फ एक्स के केस में क्या होगा कि 5,000 की उनकी कैपेसिटी है, तब 5,000 की डिमांड है, तो 5,000 की डिमांड में से और कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं लोग अपने, क्योंकि इनका इंटरनल ट्रांसफ़र भी है, तो 12,000 की कर सकते हैं टोटल। तो 5,000 यूनिट्स अगर ये एक्सटर्नल या फिर जेड को सेल करते हैं तो 11 रुपये मिलेंगे, और 2,000 यूनिट्स इसको देंगे वाई को इंटरनल ट्रांसफ़र पे, तो टोटल 75,000 कमा सकते हैं इंटरनल ट्रांसफ़र से, ठीक है। और एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लग जाएगी इस पर, क्योंकि पूरी कैपेसिटी आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो 45,000, 9,000 और 23,100 कॉस्ट लगेगी 77,100 की, तो टोटल नेट बेनिफिट हो जाएगा 167,900 का नेट रेवेन्यू एडिशन। तो स्ट्रैटेजी फॉर कंपनी एंड डिवीजन एक्स विल ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल मटेरियल टू डिवीजन वाई, डिवीजन वाई को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा देगा, एज डिवीजन वाई इज ऑफरिंग मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस टू डिवीजन एक्स। At the same time, division Z is fetching maximum contribution for the organization, so it is beneficial for both division as well as organization as a whole, ठीक है। As shown above, all three divisions are getting net benefit when they are taking decision to expand, and hence all three divisions should expand their activity by incurring additional fixed cost on expansion, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड वाले में बोला है सेंचुरियन कंपनी, Centurion Company operates a pulp division that manufactures wood pulp for use in production of various paper goods. The following information are available. Selling price दिया हुआ है 210 का, variable expenses है, contribution fixed expenses based on capacity of 1 lakh kgs per year. Centurion Company just acquired a small company that manufactures paper cartons. This company will be treated as a division of Centurion with full profit responsibility. The newly formed carton division is currently purchasing 10,000 kg of pulp per year from the supplier at a cost of 210 per kg, less a 10% quantity discount. Centurion president is anxious that the carton division begins purchasing it pulp from pulp division if an acceptable transfer price can be worked out.
Situation 1. If the pulp division is in a position to sell all of its pulp to outside customers at the normal price of 210 rupees per kg, will the managers of carton and pulp division agree to transfer 10,000? Situation 2, Situation 3. इसके बाद आंसर्स पे अगर चेक करें, सिचुएशन 1 का आंसर, सिचुएशन 2 का आंसर और सिचुएशन 3 का आंसर। सिचुएशन 1 में क्या बोल रहे हैं लोग? सिचुएशन 1 में बोल रहे हैं इफ द पल्प डिवीजन इज इन अ पोजीशन to sell all of its pulp to outside customer at the normal price of 210 rupees per kg, will the managers of the carton and pulp division agree to transfer 10,000 kgs of pulp next year at a determined price? Explain with reasons. Situation 1 का आंसर, the lowest acceptable transfer price from the perspective of the selling division is given by a formula दे दिया इन लोगों ने कि ट्रांसफ़र प्राइस अगर ज़्यादा है या इक्वल है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट ऑन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड. Total contribution margin loss on lost sale divided by number of units transferred plus variable cost per unit. अगर उतना ट्रांसफ़र प्राइस है तो लोएस्ट एक्सेप्टेबल ट्रांसफ़र प्राइस, तो हम ट्रांसफ़र प्राइस कर देंगे, मतलब डिविजनल ट्रांसफरिंग इंटरनल डिवीजन पे ट्रांसफ़र कर देंगे. द पल्प डिवीजन हैज़ नो आइडल कैपेसिटी, सो ट्रांसफर्स फ्रॉम द पल्प डिवीजन टू कार्टन डिवीजन would cut directly into normal sales to pulp to outsiders, since the costs are the same whether the pulp is transferred internally or sold to outsiders. The only relevant cost is the lost revenue of rupees 210 per kg from the pulp that could be sold to outsiders. This is confirmed below कि 126 रुपये का वेरिएबल एक्सपेंस है. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 126 रुपये का वेरिएबल एक्सपेंस है प्लस अगर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन लॉस्ट सेल्स, तो लॉस्ट सेल होती है तो 210 रुपये नहीं मिलेंगे सेल प्राइस के. ठीक है, उसके बदले 126 रुपये ये अपना कंट्रीब्यूशन हो गया. 210 माइनस 126 कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कितने यूनिट का? 10,000 यूनिट का. 10,000 kg है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इज 10,000. सो ये आएगा 210 माइनस 126 कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट 84 इंटू 10,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन इज 84 रुपीज़. सो 126 प्लस 84 अगर 210 रुपये देता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, देयरफॉर द पल्प डिवीजन विल रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र एट अ प्राइस लेस देन 210 रुपये पर kg. पल्प डिवीजन 210 रुपये से कम पर ट्रांसफ़र नहीं करेगा. The carton division can buy pulp from outside supplier for rupees 210 kg less a 10% quantity discount of rupees 21. बाहर से खरीदेगा तो 21 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा उसको, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी 210 माइनस 10% 189 रुपीज़ पर kg. देयरफॉर डिवीजन वुड बी अनविलिंग टू पे, और जो डिवीजन है वो बाय करने के लिए 189 से ज़्यादा देगा नहीं. तो ट्रांसफ़र प्राइस लेस देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर इज़ 189. अब ये है कि इसको 210 से 189 पे लाना पड़ेगा या तो इसको 189 से 210 पे ले जाना पड़ेगा. द रिक्वायरमेंट ऑफ द टू डिविजन्स आर इनकम्पैटिबल. द कार्टन डिवीजन वोंट पे मोर देन 189 एंड पल्प डिवीजन विल नॉट एक्सेप्ट 210 रुपये. दस देयर कैन बी नो म्यूचुअल अग्रीएबल ट्रांसफ़र प्राइस एंड नो ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस. फर्स्ट सिचुएशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा. दूसरी सिचुएशन क्वेश्चन में बोली अज्यूमिंग दैट पल्प डिवीजन इज करेंटली सेलिंग ओनली 60,000 kgs ऑफ पल्प ईच ईयर टू आउटसाइड कस्टमर्स एट द स्टेटेड प्राइस ऑफ रुपीज़ 210 पर kg, will the managers agree to mutually acceptable transfer price for 10,000 kgs of pulp in the next year? Explain with reasons. The pulp division has idle capacity, so transfers from pulp division to carton division do not cut into normal sales ऑफ पल्प टू आउटसाइडर्स. अगर इंटरनल डिवीजन ट्रांसफ़र करता है तो भी आउटसाइडर्स की सेल पे कुछ काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है.
तो द पल्प डिवीजन हैज आइडल कैपेसिटी, they do not have to cut normal sales of pulp to outsiders. In this case, the minimum price as far as carton division is concerned in the variable cost per kg is 126 rupees. So this is confirmed in the following calculation कि इसमें क्या हुआ 126 रुपये वेरिएबल कॉस्ट लग रही है बस प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस कुछ भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था कि इफ़ द पल्प डिवीजन इज इन अ पोजीशन टू सेल ऑल ऑफ इट्स पल्प टू आउटसाइड कस्टमर्स at normal price of 210. Now assuming that pulp division is currently selling only at 60,000 pulp kgs each year to outside customer at the stated, will the managers agree to mutually acceptable transfer price of 10,000 kgs? इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है भाई? पहले लिखा हुआ था ऑल, दूसरे में लिखा है 60,000, मतलब कुछ कम किया होगा तो इसलिए वो बाहर बेच रहा है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस तो ज़ीरो है, डिवाइड बाई 10,000, तो इसका जो प्राइस आया वो 126 ट्रांसफ़र प्राइस पे ये ट्रांसफ़र कर सकता है. द कार्टन डिवीजन कैन बाय पल्प फ्रॉम एनी आउटसाइड कस्टमर फ्रॉम ₹189 per kg and would be unwilling to pay more than that for the pulp in an internal transfer. If the managers understand their own business and are cooperative, they should agree to a transfer and shall settle a transfer price with the range 126 से लेके 189 के बीच में आप एक ट्रांसफ़र प्राइस रख सकते हो, क्योंकि इसको 126 चाहिए और ये 189 से कम पे नहीं, ज़्यादा पे नहीं करेगा. ठीक है. सेक्शन 3 में क्या बोला है? सिचुएशन 3 में, इफ़ द आउटसाइड सप्लायर ऑफ द कार्बन डिवीजन रिड्यूसेस इट्स प्राइस टू 177 per kg, will the pulp division meet this price? Explain if pulp division does not meet the price of 177 per kg, what will be the effects on profits of the company as a whole? Yes, हम मीट कर लेगा ये तो, क्योंकि उसको तो 126 पड़ रहा है ना, तो 177 पे क्या ही दिक्कत होगी. Yes, 177 is a bona fide outside price. Even though 177 is less than pulp division's 180 rupees full cost per unit, it is within the range and therefore will provide some contribution to the pulp division. If the pulp division does not meet the 177 rupees price, it will lose 5,10,000 in potential profits. क्योंकि प्राइस पर केजी 177 मिल रहा है और वेरिएबल कॉस्ट 126 का है, तो 177 माइनस 126, प्रॉफिट होता 51 का और यूनिट्स हैं 10,000, तो 5,10,000 रुपये पोटेंशियल इंक्रीज्ड प्रॉफिट. दिस 5,10,000 इन प्रॉफिट पोटेंशियल प्रॉफिट अप्लाइज टू पल्प डिविजन and to company as a whole. For situation 3, also consider that pulp division is currently selling only 60,000 kgs of pulp each year to outside customers. ये नोट डाल दिया इन लोगों ने. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. APC Limited has two buildings, two divisions, Division X and Division Y, with full profit responsibility. Division X produces component JEX, which is supplied to both Division Y and external customers. Division Y produces a product called Jextin, which incorporates component JEX. For 1 unit of Jextin, 2 units of component JEX and for other materials are used. Till date, Division Y has always bought component JEX from Division X at ₹50 per unit. Since the lowest price at which the component JEX could have been bought by Division Y was ₹52 per unit, Division X charges the same price for component JEX to both Division Y and external customers. However, it does not incur selling and distribution cost when transferring internally. Division Y has received a proposal from new supplier who has offered to supply component JEX at ₹47 per unit for at least next 3 years. Manager of Division Y requests the manager of Division X to supply component JEX at or below ₹47 per unit. Manager of Division X is not ready to reduce the transfer price since the divisional performance evaluation is done based on profit margin ratio of the division. The following additional information is made available to you. और डिटेल दिया हुआ है. कैलकुलेट द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन इन द कंपनी एज अ होल. एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ ईच डिवीजन एंड द कंपनी एज अ होल एंड वाई एक्सेप्ट्स द ऑफर ऑफ द न्यू सप्लायर. Profitability of each division and the company as a whole when Division X supplies 240,000 JEX annually to Division Y. Division Y produces 120,000 units of Jextin. Each component of Jextin requires two components of JEX that it currently procures from Division X, and therefore it procures 240,000 units of JEX from Division X annually. भाई ये सब चीज़ें हैं, ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपको, एक्सटर्नल सेल्स, इंटरनल सेल्स और टोटल डिवीजन निकाल के फिर वो डालो. हम इसमें भी सेम ही सारे क्वेश्चन ही हैं, ऐसे ही वाले हैं, इसमें और कुछ अलग तो है नहीं.
सब में यही पूछा हुआ, इम्पैक्ट ऑन एक्सटर्नल डिमांड ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग, कॉस्ट क्या रहेगी, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। ये क्या है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर एट मार्जिनल कॉस्ट आर अनसुइटेबल फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन since they do not provide an incentive for the supplying division to transfer goods and services internally. This is because they do not contain a profit margin for the supplying division. CE Chief Executive's intervention may be necessary to instruct the supplying division to meet the receiving division's demand at marginal cost of transfer. Thus, division autonomy will be undermined. To resolve the above conflict, the following transfer pricing methods have been suggested. दो ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, एक होता है ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग और एक होता है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। तो ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में द सप्लाइंग डिवीजन रिकॉर्ड्स transfer price by including a normal profit margin, thereby showing reasonable revenue. The purchasing division records the transfer price at marginal cost, thereby recording purchases at minimum cost. This allows for better evaluation of each division's performance. It also improves cooperation between divisions, promoting goal congruence and reduction of sub-optimization of resources. Two-part transfer pricing system. The pricing system is again aimed at resolving problems related to distortions caused by the full cost based transfer price. Here, transfer price is equal to marginal cost of production plus a lump sum charge, two part to pricing. While marginal cost ensures recovery of additional cost of production related to the goods transferred, lump sum charge enables the recovery of some portion of the fixed cost of the supplying division. Therefore, while the supplying division can show better profitability, the purchasing division can purchase the goods at lower rate compared to the market price. टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है, दिस प्राइसिंग सिस्टम इज अगेन एम्ड एट रिजॉल्विंग प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए ही होता है ये भी। रिलेटेड टू डिस्टॉर्शंस कॉस्ड बाय फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस से जो डिस्टॉर्शंस होते हैं उसको सही करने के लिए टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। ट्रांसफर प्राइस इसमें होती है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस लमसम चार्ज, टू पार्ट टू प्राइसिंग। दो पार्ट होते हैं, एक मार्जिनल कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का जो लगा, प्लस लमसम चार्ज लगा देते हैं, उसको ट्रांसफर प्राइस बना देते हैं। वाइल मार्जिनल कॉस्ट इंश्योर्स रिकवरी ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू गुड्स ट्रांसफर। लमसम चार्ज मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो वही प्रोडक्शन का कॉस्ट है जो लगा, और लमसम चार्ज इनेबल्स द रिकवरी ऑफ सम पोर्शन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द सप्लाइंग डिवीजन। लमसम चार्ज से क्या होता है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो रिकवर हो जाती है सप्लाइंग डिवीजन की। Therefore, while the supplying division can show better profitability, the purchasing division can purchase the goods at lower rate compared to market price. और ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में क्या होता है, सप्लाइंग डिवीजन जो होता है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांसफर प्राइसिंग बाय इंक्लूडिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन, थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करता है, और परचेजिंग डिवीजन जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्ट ऐड करता है, मार्जिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करता है ताकि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए। दिस अलाउज फॉर बेटर इवैल्यूएशन ऑफ ईच डिवीजन परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कोऑपरेशन भी बना रहता है डिवीजन के बीच में, और प्रमोटिंग गोल कॉन्ग्रेंस एंड रिडक्शन ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एनालिसिस ऑफ बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज वही सब करना है। डिवीजन ए हैज़ ह्यूज डिमांड फॉर इट्स लेंसेज, they yield a ROI of 12% profit of 15 rupees per lens. If division A sells lens to division B, this would therefore result in lower divisional profit. Consequently, however, due to inability to recover fixed cost, सब मन से लिखना पूरा। Analysis to overall benefit to the company for internal transfer. While calculating the benefit to the company, the fixed cost of each division is ignored. It is also given in the problem that only marginal cost, that is variable cost, is considered for decision making. As explained above, please note that internal transfer prices affect profitability of individual division but does not affect the company's overall profitability. Range of transfer price. Range निकाल लो, minimum transfer price is equal to marginal cost plus opportunity cost per unit. Maximum transfer price is lower of net marginal revenue, and the external buy-in price is maximum transfer price. Minimum transfer price is equal to marginal cost per lens plus opportunity cost per lens. In other words, minimum transfer price would be the external sale price of each lens. Advice on alternative to current transfer pricing system. Dual pricing लगा लो, या फिर ड्रॉबैक्स हो, या फिर टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम लगा लो। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं डुअल प्राइसिंग के, इट कैन कॉम्प्लिकेट द रिकॉर्ड्स, देयर बाय में रिजल्ट इन एरर्स इन कंपनीज ओवरऑल रिकॉर्ड्स,
Profits shown by the division are artificial and need to be used only for internal evaluations. उसको आप external evaluations में नहीं लगा सकते क्योंकि आप marginal profit और marginal cost दिखा रहे हो. टू पार्ट प्राइसिंग सिस्टम भी पढ़ लिया अभी अपन ने कि आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पार्ट हो गया, एक लमसम चार्ज करते हो दूसरा पार्ट हो गया, तो दो पार्ट हो गए उसके कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग के. रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वेयर डिवीजन ए हैज़ एक्सेस कैपेसिटी. When supplying division A division has excess capacity, the range of transfer pricing would be. जब excess capacity होती है तब range निकलती है. Threats to goal congruence due to internal transfer pricing system are. User groups, consulting and customer services departments are concerned that training department is not controlling its cost. Since entire actual cost gets allocated to the user, training department may not be managing its cost efficiently since the financials of user departments are affected. It may lead to conflict between the departments. Threats to goal congruence due to internal transfer pricing are. क्वेश्चन नंबर 8. बिजनेस मॉडल दिया हुआ है रेस्ट इजी कंपनी का, ट्रांसफ़र प्राइसिंग दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, कंसल्टेंट से कुछ पूछा है, प्रॉब्लम ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस. भाई ये क्वेश्चन है क्या है? आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू गोल कॉन्ग्रुएंस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सो जाओ. टू पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, लमसम चार्ज प्लस मार्जिनल कॉस्ट. लिखते लिखते तो पागल ही हो जाओ. फिर ये 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है ये द फ्यू सजेस्टिव इश्यूज दैट शुड बी कंसिडर्ड एज फॉलोज. फॉर जापानीज मैन्युफैक्चरर फाइनल डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रपोजल. क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2. आइडेंटिफाई अदर इश्यूज दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय SCI इन रिलेशन टू दिस प्रपोजल. इसमें क्या क्या बोला है? द लॉन्गिविटी ऑफ द प्रपोजल ऑफ द जापानीज मैन्युफैक्चरर, सर्टेनिटी ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, repatriation of profit earned in India, operating conditions in China, the fiscal policy of China. चाइना की फिस्कल पॉलिसी देखेंगे, ऑपरेटिंग कंडीशन देखेंगे, इंडिया की फिस्कल पॉलिसी देखेंगे और रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया देखेंगे और लॉन्गिटिविटी ऑफ द प्रपोजल. Whether Japanese manufacturer will supply the components in the future also. For this purpose, a long-term agreement between the Indian subsidiary of SCI and Japanese manufacturer in India need to be entered. 4 चीज़ें देखेंगे, बस ख़त्म.